جی سر السلام آپ ان کو علیکم۔ ایڈ کیجیے دوبارہ, آپ ایڈ کر سکتے ہو ان کو, آپ کو دوبارہ ان کو ایڈ کرو. چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا میاں صاحب اگر اجازت ہو تو. جی لافرال السلام بھائی. علیکم، کیا حال وعلیکم ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا چھوٹی سی الحمدللہ. بات کرنا چاہوں گا میاں صاحب، یہ حمزہ بھائی جو سوالات کر رہے ہیں، جی جو انٹرویو لے رہے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس جی کا سارے سوالوں کے جواب بھی دیے جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر اچھا ان کا جواب دینے کا فائدہ کیا ہوگا یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ اچھا کیونکہ ان کا جو ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی جی نبی نہیں آ میں سکتا. بھائی جان سمجھ گیا اگر ہوں. یہ میری ایک منٹ میری بات سن لیں, میں آپ کا سارا بات سمجھ گیا ہوں. جی جی اگر ہم نے یہاں پہ ایسے سوالوں کے جواب نہیں دینے ہیں, ہمیں یہ ساری اپنی جماعت کی اتنی 8 10 15 لائف سارا دن صبح سے لے کے رات تک پھر یہ چلانے کا فائدہ کیا ہے کہ اگر ہم نے یہاں پہ ہوں میری وجہ سے نا آپ پریشان نہ ہو. میری ان بھائیوں کے ساتھ کوئی جو ہے نا وہ اللہ نہ کرے لڑائی جھگڑا نہیں ہے. آپ کے جو سوالات ہیں وہ آپ ان کو کنٹینیو کریں. میں تو ان کے ساتھ جو ہے نا میرا آپس کا جو ہے نا ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ نا ہماری گفتگو چلتی رہتی ہے. تو آپ پلیز اپنی جو ہے نا گفتگو کو بے شک آپ جاری رکھیں. جو آپ نے سوالات ان کے سامنے رکھے ہیں آپ ان کا جو ہے نا وہ جواب ضرور ان سے لیجئے. میرے جو سوالات ہیں آپ بے شک ان کو لے لیجئے اپنے پینل پر, لیکن ان کو جو ہے نا وہ بیس نہ بنائیے یا اس کی وجہ سے کوئی آپس میں آپ پھڈے بازی نہ ڈالیے. میں ہر وقت حاضر ہوں. میں جو ہے نا وہ طالب علم ہوں. میں سیکھنا چاہتا ہوں, میں لرننگ کرنا چاہتا ہوں. بڑی بڑی محبت آپ کی. بہت شکریہ. دونوں بھائیوں کو بہت شکریہ. علی بھائی آئی ایم آلسو لائک یو, طالب علم ہی ہوں, سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, سمجھنے کی بھی کوشش کر رہا ہوں. صحیح ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے میاں صاحب تو میں ہمارے نیچے جا بیچ رہا ہوں میں. صحیح ہے. کیونکہ میں پہنچ گیا وہاں پہ تو میں بات نہیں کر صحیح ہے. سکوں گا اب. ٹھیک ہے مبارک تو بھائی. واٹ میرے ایور میں اختلافات نیچے ہوں گے, بیٹھتا ہوں. باتیں ہوں گی, ٹھیک ہے کچھ بھی ہوگا. صحیح ہے. اللہ معاف واٹ کرے, ایور معاذ شارٹ باللہ کٹ توبہ میں استغفار. نیچے جا رہا ہوں. کوئی میری طرف ٹھیک سے ہے ایسا کی بات نہیں ہوگی جس سے دل آزاری آپ کی ہو یا میری ہو. صحیح ہے. اس چیز سے میں آپ کو 100% گارنٹی دیتا ہوں. صحیح ہے. تو جسٹ اختلافات کچھ ہوں گے, باتیں ہوں گی, سوال جواب ضرور ہوں گے. صحیح ہے. کئی جگہ پہ آپ رائٹ ہوں گے, کئی جگہ پہ میں ہوں گا. صحیح ہے. کچھ میرے اختلافات ہوں گے, تو وہ ساتھ ساتھ چلیں گے. بٹ یہ چیز ہے کہ اگر ایک سائڈ پہ میں اکیلا اگر بات کر رہا ہوں یا کوئی سوال پوچھ رہا ہوں یا بٹ اس مقابلے میں پھر ایک بندہ بات کرے, ایک سوال کا جواب 2 3 بندے نہ دیں. صحیح ہے. جی ہاں, جس کو میں پوری شروع نالج کرتا ہے, ہوں. صحیح ہے, میں وہ سب اس میں طریقے شروع سے کرتا بات ہوں. کرے. تو میں شروع مے بی کرتا ہوں. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. اگر مطلب کہ میرے کچھ سوال ہیں, کوئی ایک جواب دے رہا ہے, پھر بھائی کوئی جان, دوسرا جواب اب دے رہا ہے, پھر یار کوئی تیسرا دے رہا ہے. حمزہ صاحب آپ نے یہ 15ویں دفعہ یہ بات ریپیٹ کیا اور 15 منٹ لے گئے آپ. ہم آپ سے کیا سر بات کریں, ہمارے پاس کیا ٹائم رہ گیا. 3:15 آپ کو پتہ ہو چکے ہیں جرمنی میں. سر 11 3:15 ہو گیا. اگر آپ دین کی تبلیغ کے لیے بیٹھے ہیں تو فرسٹ آف آل آپ کو ٹائم کا تو ہونا ہی نہیں چاہیے. تو بھائی اتنے جان میں بج گئے. رات 11 بجے کا بیٹھا ہوں. تو واٹ ایور جتنا بھی ٹائم ہے, اللہ کی راستے میں بیٹھے ہو, اللہ کے رضا کے لیے بیٹھے ہو. صحیح ہے. تو پھر تو آپ اللہ کو کی ٹائم کا رضا, تو اندیشہ نہیں ہونا چاہیے. تو رضا لے لینے دینا. ساری رضا تو آپ السلام لپیٹ رہے ہیں. علیکم رحمۃ اللہ. کیا حال چال ہے والے سب دوست؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. کہ جواب آپ کو ماشاءاللہ ایک ہی بھائی دے رہے ہیں جو یعنی کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, سارا نہیں آپ کو جواب دے رہے. جزاک اللہ. بس یہی بات کرنی تھی میں نے. ہاں جی بابو بھائی تسی سناؤ. ویلکم. مطلب ایک محفل دا ڈیکورم چلدا رہندا ہے اور باقی سارے دوست چپ کر کے بیٹھے رہندے نے. میاں صاحب دی براڈ تے ایک اصول ہے. تسی پہلی دفعہ آئے ہو تے اس طرح کہ ایک تسی سوال پیش کرنا ہے, تسی چپ کر کے بیٹھ جاؤ. جدوں تہاڈا انہاں دا جواب تہاڈا مل جائے, مزید تہاڈے کوئی سوال نے وہ تسی رکھو, تانوں موقع دتا جائے گا. کوئی ایسی گل نہیں. جزاک اللہ. میں بس بات کر رہا ہوں. جزاک اللہ بابو بھائی. اچھا ناصر بھائی, ان کا جو شروع سے سوال ہے نا, ان کا سوال ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے والدین, ان کا پیدائش یہ وہ سارا, تو وہ آپ اختصار سے انہیں بتا دیں کہ جی میں عرض کر رہا ہوں. مرزا غلام احمد صاحب جو قادیانی تھے, قادیان ہندوستان میں ایک چھوٹا سا قصبہ ہے, وہاں کے رہنے والے تھے. آئے تو وہ سمرقند کے علاقے سے تھے, لیکن آباد یہاں کے ہوئے اور بہت خدا کے فضل سے زمیندارانہ خاندان سے آپ کا تعلق تھا. کئی گاؤں
जो थे उनके वालिद साहब के अंडर थे, 200 से भी ज़्यादा गांव। उनका नाम था मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद, हज़रत मिर्ज़ा साहब का नाम था, आपके भाई का नाम था मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर, और आपके वालिद का नाम था मिर्ज़ा गुलाम मुर्तज़ा। ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब। ठीक है, ये उनके वालिद का नाम हो गया। कादियान के वो रहने वाले थे। बचपन में, मुख्तसर बताता जाता हूँ, बहुत लंबी तफसील है, मिर्ज़ा साहब को बचपन से ही दीनी कामों में बहुत शगफ था। आप हैरान होंगे कि अभी मिर्ज़ा साहब की उम्र 10 साल की थी तो उनके घर में जो नौकरानी काम करती थी उसको ये कहा करते थे कि भले मान से दुआ कीता कर, अल्लाह ताला मैनू नमाज नसीब करे। अब एक छोटा बच्चा जो 10 साल का है वो अपनी नौकरानी जो उनसे बड़ी है घर में, उनको यूँ कह रहे थे कि भले मान से दुआ कीता कर, अल्लाह मैनू नमाज नसीब करे। खैर, ये उनकी नेकी की बातें आपको बता रहा हूँ। शगफ था खुदा के साथ ताल्लुक़ का। मस्जिद उनको कहते थे, उनके वालिद साहब मिर्ज़ा ग़ुलाम मुर्तज़ा साहब उनको कहा करते थे, मेरा बच्चा तो मसीतड़ हो गया। जब कोई आना मेहमान तो किसी ने पूछना कि वो कहाँ है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद, तो कहना वो मस्जिद में होगा कहीं, वो तो मसीतड़ हो गया है। बड़े बड़े अफसरान ने कहा कि आपका बेटा जवान हो गया है, हम इसकी कोई नौकरी का फ़िक्र करें। तो मिर्ज़ा साहब को बुलाया उनके वालिद साहब ने, तो पूछा कि क्या ख्याल है तुम्हारी नौकरी के लिए कुछ करें। तो उन्होंने कहा कि अब्बा जान, मैंने जिसकी नौकरी करनी थी वो कर ली है। मतलब ये था कि मैंने खुदा का काम करना है, मैंने और कोई नौकरी नहीं करनी। ठीक है, यही हाल मिर्ज़ा साहब का चलता रहा। बेटियों में बढ़े, खुदा की तरफ तवज्जो की, और अपना 1835 में आपकी यानी पैदाइश का साल मैं भूल गया, 1835 में आपकी पैदाइश हुई थी। फिर जब आप जवान हुए तो जवानी में आपने देखा कि इस्लाम पर मुख्तलिफ एतराज़ हो रहे हैं। तो उस ज़माने में, ये 1877-78 की बात है, यानी आपके दावे से पहले की बात कर रहा हूँ, आपने बराइन अहमदिया एक किताब लिखी। और उस ज़माने के जो बड़े बड़े मौलवी थे, मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब बटालवी और मौलाना अमृतसरी साहब, सनाउल्लाह अमृतसरी साहब उनका नाम था। उन्होंने ये लिखा कि मिर्ज़ा साहब का तकवा इतना आला था, इतने बुज़ुर्ग इंसान थे कि मैं अमृतसर से पैदल मिर्ज़ा साहब को मिलने के लिए कादियान गया। ठीक है, फिर मौलवी मोहम्मद हसन साहब बटालवी ने ये कहा, जो अहले हदीस के बहुत बड़े उलमा में से थे, उन्होंने कहा कि मिर्ज़ा साहब ने ये जो बराहीन अहमदिया इस्लाम का दिफा किया है ईसाइयों के मुकाबले में, दूसरे मज़हबों के मुकाबले में, ये इतना बड़ा दिफा है इस्लाम का कि 1400 सदियों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ऐसा कोई नौजवान पैदा नहीं हुआ जिसने इस्लाम की इतनी बड़ी खिदमत की हो जितनी मिर्ज़ा साहब ने की है। और वो उसने कहा, मौलवी साहब ने कहा कि उनकी किताबों से देख लो, वो एक किताब अगर आप पढ़ लें, सिर्फ बराइन अहमदिया पढ़ लें, आप कहेंगे वाक़अतन ये सच्ची है। बहरहाल 1899 में मिर्ज़ा साहब को अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि आप इस ज़माने के इमाम महदी हैं। आपने दावा किया कि मैं ज़माने का महदी हूँ। पहला मसीह जो था वो फौत हो चुका, जो ईसाइयों की तरफ आया था, मैं उसके रंग में रंगीन होकर इस ज़माने में आया हूँ। 1899 में आपने अपनी जमात की, 23 मार्च 1899 में आपने अपनी जमात की बुनियाद रखी। पहले दिन जब आपने बुनियाद रखी तो 40 लोग आपकी बैत में शामिल हुए और खुदा के फजल से ये सिलसिला बढ़ता चला गया और आज खुदा के फजल से पूरी दुनिया में खुदा के फजल से 125 मुल्कों में जमात अहमदिया फैल चुकी है और करोड़ों की तादाद में आज खुदा के फजल से अहमदियत के परवाने हमें दुनिया में नज़र आ रहे हैं। तो ये मुख्तसर तारफ़ था। आप मुख्तसर सवाल करें, मैं मुख्तसर जवाब देता चला जाऊँगा। जी जी हमजा साहब।
जी अल नासर भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई साहब, और मैं आपने चूंकि मैं स्पीकर बंद कर देता हूँ। देखिए हमारी गुफ्तगू जारी जी हो सही रही है, है। आप जस्ट में सुने आप, सही है। नहीं, मैं सलाम, आप सलाम ना करें, बार बार वो जी इंटरप्ट सही हो है, जाता है बंदा। ओके सिर्फ सर, क्या नासिर भाई मुझे ये जवाब देते बस। जी सही है सर। सर जहाँ तक आपने बात की है ना खिदमत की 1400 साल में, इसमें कोई शक नहीं है कि मिर्ज़ा साहब के पास जितना इल्म था कोई भी नहीं आया। तो ये जिस तरह उन्होंने दीन का दिफा किया, वट एवर जो कुछ भी किया, मैं तफसील में नहीं जाता, ना ही मुझे बहुत ज़्यादा पता है, बट जस्ट इतना मुझे पता है उस चीज़ पे बात कर रहा हूँ कि इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि उन्होंने वाकई दीन का दिफा किया, अपने इल्म से किया, सही है। तो इल्म उनके पास बहुत ज़्यादा था, सही है। 1899 में जब उन्होंने अपने आप को इमाम मेहदी या ईसा इब्न मरियम, इस तरह का, खैर मुझे इतना कंफर्म नहीं पता, तो उस शक्ल में आए हैं जो कुछ भी है, सही है, वो किया। हमारा सवाल ये है कि ये सब कुछ करने से पहले उनका कीदा क्या था, वो किस जमात से तल्लक रखते थे? जी, मैं एक तो ये है कि मैं जो बात कर दूं आप उसको रिपीट ना करें, टाइम ज़ाया होता है। हनफी अकीदे के मिर्ज़ा साहब कायल थे। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के अकीदे के कायल थे। इसलिए कायल थे कि वो कहते थे कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जितनी हदीसें हैं वो इमाम अबू हनीफ़ा से ताल्लुक़ रखती हैं और इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने उनको एक्सेप्ट किया है। इसलिए मैं हनफी अकीदे का कायल ने उनको एक्सेप्ट किया है। इसलिए मैं हनफी अकीदे का कायल ने उनको एक्सेप्ट किया है। इसलिए मैं हनफी अकीदे का कायल ने उनको एक्सेप्ट किया है। जैसे कि क्या हमजा साहब आपका माइक ख़राब हो गया है। ये हमजा साहब का माइक का प्रॉब्लम हो गया। उन्होंने कोई हैंड फ्री चेंज किया या कुछ ऐसा काम किया, उनकी कॉल आई है लगता है, मियाँ साहब कोई कॉल शाल आ गई उनको। ऐसे ही होगा। जी नासिर भाई, आप माइक खोल के जवाब दें। मिस्टर सर, मेरी बात कर रहे हैं आप? जी आपकी तरफ से माइक खराब है। भाई आप माइक खोल के जवाब। सर ना तो मुझे कोई कॉल आई है, ना मैंने हेडफोन चेंज किए, ना मैंने अपने फ़ोन को हाथ लगाया है। सर ना तो मुझे कोई कॉल आई है, ना मैंने हेडफोन। जी नासिर भाई आप बोले, आप शायद आपका माइक तो नहीं कोई ऐसा गड़बड़ कर रहा। नहीं, मेरा माइक ऑन हाँ है। जी नहीं, हाँ जी वो नासिर रिपीट हो रहा साहब ना, आपका ही रिपीट हो हमजा रहा। साहब माइक से रिपीट हो रही है आवाज़। जी हमजा साहब। जी सर। जी आगे कोई सवाल? जी सर। सर मेरी आवाज़ दोबारा रिपीट हो रही है। जी आगे फिर कोई सवाल? आप ड्रॉप करके दोबारा आ जाए। आप मुझे डिस्कनेक्ट करके दोबारा कॉल में ले लो। आप ड्रॉप करके दोबारा आ जाइए। आप मुझे जिस जी हमजा साहब। जी सर। सर इस तरह बात करते जाएं तो मैनी अनदर क्वेश्चन भी हैं, सही है, वो भी खड़े हो रहे हैं माइंड में, सही है। तो एक चीज़ क्या है कि देखिए अगर मैं सवाल करूं तो बुरा ना महसूस कीजिएगा, जी सही है। सवाल ही कुछ ऐसे होंगे फिर, ठीक है। तो जस्ट आप मुझे ये एक्सप्लेन कर दो शॉर्टकट कि आप लोगों को काफर क्यों कहा जाता है फिर? देखिए मेरी साकिब भाई से बात हुई थी, शॉर्टकट बात करूंगा कि कलमा वही है, कुरान वही है, ठीक है, मैं समझ आ गई यार। मुझे आपका इशारा ही काफ़ी है। मुझे सब ये, मैं तो देखे ना 40 साल से ये बातें कर रहा हूँ, इसलिए मुझे आप तशरीह ना करें, आप इशारा करेंगे मैं आपको जवाब दे दूँगा, ठीक है। पहली बात ये है, मैं उसके जवाब में सबसे पहले
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دوں گا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضور کو اور آپ کے صحابہ کو پتہ کیا کہتے تھے لوگ؟ جو بھی مسلمان ہوتا تھا اس کو کہتے تھے قد اصبتا، تو صابی ہو گیا ہے، اور قد اصبتا کا مطلب تھا کہ تو ستارہ پرست ہو گیا ہے، تو خدا کا بھی منکر ہو گیا ہے۔ ناصر بھائی سوری معذرت چاہتا ہوں، یار میری بیچ میں نہ چھوٹی ٹوکیں بات کروں گا یہیں پہ، پلیز بیچ میں نہ ٹوکیں، پھر جی مضمون اوکے، خراب ہو جاتا ہے۔ میری پوری بات ہونے دیں پھر آپ کو میں بات بتاؤں گا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سارے صحابہ کو جو مسلمان ہوتے تھے ان کو کہتے تھے لوگ تو صابی ہو گیا ہے۔ یہی معاملہ ہمارے ساتھ ہے، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو میرا امام مہدی ہوگا وہ میرے حالات پر ہوگا، جس طرح میرے حالات مجھ پر آئے ہیں اسی طرح کے حالات اس پر آئیں گے۔ تو ہم دیکھیں، میں کہتا ہوں اپنے منہ سے، زبان سے، دل سے کہ خدا کے فضل سے میں قرآن شریف جانتا ہوں، میں حدیث جانتا ہوں، میں قرآن شریف کا بے شمار حصہ مجھے حفظ ہے، میں روز ترجمہ پڑھتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد اگر کوئی مجھے کافر کہتا ہے تو میں اس کے کہنے سے کافر نہیں ہوتا۔ یا آپ مجھے یہ بتا دیں، دیکھیں نا، ایک بندے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت اسامہ بن زید نے کافر کو قتل کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنا قصہ بتانے لگے کہ حضور آج ایک کافر کو میں نے قتل کر دیا، اور جب قتل کرنے لگا اس کی گردن پہ میں چھری چلانے لگا تو اس نے کلمہ پڑھ لی، تو پھر بھی میں نے اسے قتل کر دیا۔ اب وہ اپنی بہادری کا واقعہ حضور کو سنا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سنے، حضور نے فرمایا اے اسامہ، جب قیامت کے دن کلمہ تیرے خلاف گواہی دے رہا ہوگا تو اسامہ تو خدا کو کیا جواب دے گا؟ حضور کے الفاظ یہ تھے، الا شککت قلبہ، اے اسامہ تو نے اس کافر کا دل چیر کے کیوں نہ دیکھ لا؟ انہوں نے کہا حضور کو کہ حضور وہ تو ڈر کے پڑھ رہا تھا، اوپر سے پڑھ رہا تھا، تو حضور فرما رہے تھے الا شککت قلبہ، تو نے اس کا دل چیر کے کیوں نہ دیکھ لیا؟ الا شککت قلبہ، کاش تو اس کا دل چیر کے دیکھ لیتا۔ ٹھیک ہے، تو مجھے یہ بتائیں، آپ ہی مجھے بتا دیں عقل سے، اپنے ذہن سے سوچ کے، کہ کیا کسی مسلمان کو، اگر میں کلمہ گو تو کیا کسی مسلمان کو یہ حق ہے کہ میرے دین کا فتویٰ وہ مجھ پر لگائے؟ اور اگر یہ ہے تو مجھے بتائیں کہ پاکستان میں مومن کون ہے، مسلمان کون ہے؟ شیعہ اہل حدیث کو کافر کہتے ہیں، اہل حدیث شیعہ کو کافر کہتے ہیں، سنی اہل حدیث کو کافر کہتے ہیں، اہل حدیث سنیوں کو کافر کہتے ہیں، سنی جماعت احمدیہ کو کافر کہتے ہیں۔ مجھے بتائیں بچہ کون ہوا ہے؟ یہ میرا جواب ہے۔ جی حمزہ صاحب۔ جی سر، پہلے تو آپ کو میں جواب دوں گا اس چیز کا کہ سنی، شیعہ، اہل حدیث، تشیعی، وابی، دیوبندی، واٹ ایور پاکستان میں اور جتنے بھی فرقے ہیں یہ سب آپ کو کافر کہتے ہیں، صحیح ہے۔ سنی شیعہ کو کافر نہیں کہتا، یہ کافر شیعہ سنی کو کافر نہیں کہتا، ہاں ان کے اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ اور جہاں تک بات آ گئی، دیکھیں میں نے جیسے ایک سوال کیا تھا کہ آپ کو کافر کیوں کہتے ہیں، جہاں تک اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ بات کر رہے ہیں، جب ان کی اوپر وحی نازل ہوئی تھی یا جب وہ دین کو لے کے چلے تھے، سب سے پہلے ان میں جو اسلام لے کے آنے والے تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، صحیح ہے۔ تو جن لوگوں نے اس ٹائم پہ ان کے اوپر واٹ ایور کچھ بھی، جو صحابہ اکرام مسلمان ہوئے تھے تو ان کے اوپر کچھ جو بھی آپ نے آگے بات کی ہے، کافر کا لفظ استعمال کیے یا صحابی یا واٹ ایور کچھ بھی ہے، تو وہ لوگ مسلمان نہیں تھے۔ بات یہ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کافر کہہ رہا ہے، یہ کوئی خالہ کا بیڑا نہیں ہے، پنجابی وچ اگر گل کی جائے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو یہ بات کہہ رہا ہے۔ یہ چیز میں نے پہلے بھی اس بوڈ کاسٹ میں بات کر دی ہے کہ اس دنیا میں، اس ورلڈ پہ، اس ارض پہ جسٹ ہم لوگ ہیں جو مسلمان کو کافر کہہ رہے ہیں، اور دوسرا مسلمانوں میں اتنے اختلافات چل رہے ہیں، صحیح ہے، ہم آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، صحیح ہے، اپنے فرقوں کو لے کے، اپنے جو بھی ہے تبلیغی جماعتوں کو لے کے یا واٹ ایور جو بھی ہے جتنے بھی اپنے قیدے ان کو لے کے، صحیح ہے۔ کل کو قیامت کے دن سنی نے اپنا جواب دے ہونا ہے، شیعہ نے اپنا، وابی نے اپنا، قادیانی احمدی نے اپنا ہونا ہے، صحیح ہے۔ بٹ ہم لوگ مسلمان جس اس دنیا میں ایک یہ بھی فرقہ ہے جو لڑ رہا ہے
وہ ہے مسلمان، فرقوں میں ہے اور لڑ رہے ہیں آپس میں، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. میری نظر کے مطابق سنی شیعہ وابی دیوبندی احمدی کا یعنی کچھ بھی نہیں ہے، خدا جانتا ہے. جسٹ ایک اللہ، رسول، قرآن، نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو، ختم. صحیح ہے. اور باقی جو حقوق العباد ہیں صحیح ہے، ان پہ آپ فوکس کرو. صحیح ہے، دنیا میں ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. صحیح ہے. جو اللہ نے ہم پہ فرض نازل کیے نا، جسٹ بیکاز آف وہ اس نے اس وجہ سے کی ہیں جو ہم ادا کر سکتے ہیں. اللہ نے ہم کے اوپر بوجھ بھی نہیں ڈالا، اور اللہ نے یہ چیز صاف قرآن میں کی ہے، میں کسی انسان کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالتا. صحیح ہے. ہم مسلمان، خدا گواہ ہے، اللہ بھی دیکھ رہے، تماشا مارا. صحیح ہے. ہم لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. صحیح ہے. نہ تو ہمیں کوئی خود پتہ ہے دین کا، صحیح ہے، کیا رستہ ہے کیا نہیں ہے، نہ ہمارے مولویوں کو پتہ ہے. کچھ حال میں دین ہے. صحیح ہے. کچھ حال میں دین ہے جن کو اللہ پاک نے علم دی ہے، تصدیق دی ہے، جن کو بہتر پتہ ہے. صحیح ہے. کچھ گزر گئے ہیں، کچھ باقی رہ گئے. ہم لوگوں کے پاس ٹائم ہی کو نہیں ہے. صحیح ہے. ہم فالو کر سکیں، ہم کچھ سمجھ سکیں، ہم کچھ سیکھ سکیں. خیر آپ لوگ میں جانتے نہیں ہو، ثاقب بھائی کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں سم ٹائم، 2 4 5 سال ہو گئے ہیں، ان سے بات ہوتی ہے. ایک جسٹ شارٹ بات کروں گا. ثاقب بھائی سے میری ملاقات ہوئی تھی 2016 17 میں 18 میں. صحیح ہے. فرسٹ 2 سال میں ان کے ساتھ ٹریول کرتا رہا ہوں. ایک دفعہ نہیں، ایک دوسرے سے ہم دونوں نے پوچھا کہ کیتا کیا ہے ہمارا. ہم جسٹ ایز اے مسلم آلویز ٹریول کرتے تھے. پھر بات پتہ چلی، سم ٹائم ڈسکس ہوئی چھوٹی موٹی. ابھی آگے تھوڑی زیادہ ڈسکس ہوئی ہے بیکاز آف تھرڈ پرسن، اس کی وجہ سے. صحیح ہے. ثاقب بھائی کو میں نے یہی بات کہی ہے کہ ہم آپس میں مسلمان بغیر لڑ رہے ہیں. ہم جسٹ یہ نہیں کہتے کہ ہم ایک نبی کے ماننے والے، ایک قرآن ہے، ایک اللہ، ہم اس کو فالو کریں. اور یہ بابے بڈھے یا وٹ ایور کوئی بھی ہے اس دنیا میں جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھیں. قرآن ہدایت کا ہمارے سامنے ایک ذریعہ ہے، اس میں اللہ پاک نے سب کچھ لکھا ہوا ہے. اور اسی وجہ سے ہم لوگ آج اس دنیا میں ذلیل بھی ہو رہے ہیں. تو مجھے آپ جسٹ اتنی بات میری بتا دو. بات تو سنیں. ٹھیک ہے، میں اس چیز پہ مطمئن کرتا ہوں. اگر میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اگر جو ابھی خلیفہ چاہ رہے ہیں، صحیح ہے، آپ کے انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ واقعی چوتھے یا پانچویں خلیفہ ہیں اس ٹائم، تو وہ اس ٹائم کیوں نہیں اٹھ کے سامنے آ رہے؟ امام مہدی علیہ السلام نے کب آنا تھا؟ جب مسلمانوں پہ مشکل آنی تھی، یا اس چیز پہ ایک لمبی تفسیر ہو جائے گی. تو بھی کیوں نہیں وہ فلسطین پہ بات کر رہے، کیوں نہیں لبنان پہ بات کر رہے، کیوں نہیں عراق پہ بات کر رہے، کیوں نہیں انہوں نے بات کی شام پہ، سب کچھ کیوں نہیں وہ کھڑے ہو کے سامنے فرنٹ پہ آ رہے کہ میں ہوں، میں ان کا محافظ ہوں. حمزہ بھائی ابھی میوٹ لگا لیں، اب جواب دیتے ہیں آپ کو ناصر بھائی. سر دیکھیں جواب آپ کی نے بات کافی سارے دیکھیں، سوال کر لیے ہیں، ناصر بھائی آپ کو جواب دیتے ہیں. یار آپ ایک سوال کیا کرو. آپ اتنی لمبی، یہ مجھے بھی باتیں پتہ ہیں جو آپ نے کی ہیں. آپ ایک سوال کرو مجھ سے، اس کا جواب لو. اب آپ نے ہزاروں باتیں کی ہیں، میں کوئی کمپیوٹر تھوڑا ہوں کہ آپ باتیں کریں گے میں اس کا جواب دیتا جاؤں سر گا. دیکھیں آپ ٹھیک ہے، میں سمجھ رہا ایک ہوں منٹ آپ کی سنو نا، بات بھی. سنو جسٹ تو میں نے صحیح یہ نا. آپ سے سوال نہیں ابھی کیے کہ جو میں نے ابھی کوئی بھی بات کی نا، یہ یار میں یہ جو سوال نہیں آپ کیا آپ باتیں سے. کر رہے سوال ہو، ایک ہوتا ہے شارٹ کٹ. جسٹ ایک میں نے بات کی ایز اے مسلم، سنو وی تو آر اے صحیح نا یار، مسلم، وی آر ایک تو اے. اچھا سنتے بھی نہیں. ایک منٹ حمزہ بھائی، ماشاءاللہ جو آپ کے جذبات ہیں نا، یہ جذبہ ہے، یہ بہت اچھا ہے. اور بھائی میری بات سنو، واٹ ایور، میں چھوٹی بات کروں گا. آپ لوگوں کا جو بھی کیتا ہے، صحیح ہے، ٹھیک میرا ہے. جو بھی ہے، جی جی، مسلمان ہو نا آپ، ہاں جی ہاں جی صحیح ہے، اسی اللہ کو مانتے ہو، اسی قرآن کو مانتے ہو، اسی محمد کو مانتے ہو. صحیح ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی، یہ 1,24,000 پیغمبروں پہ ایمان ہے آپ کا. بالکل جی بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو یار کوشش کرو پھر واٹ ایور کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے، جو جس کا عقیدہ کل کو اس نے خود حساب دے ہونا ہے. ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے. صحیح ہے. کل ٹھیک کو ہے، مریں گے ہم، کھپیں گے، میں غلط ہوں میں سڑوں گا، آپ وہ غلط ہوئے آپ سڑو بالکل گے، وہ وہ حساب ہی بھائی ہو غلط گیا. ہوا بات وہ تو سڑے سن گا. لینا. صحیح ہے. ہم کم از ایک کم منٹ آپس ناصر میں، بھائی ذرا خاموش رہے ذرا. جی حمزہ صاحب بولیں. کم از کم ہم آپس میں تو اتنا نہ ہوں. نہیں کوئی نہیں ہوتے، بالکل ٹھیک ٹھیک ہے. ہے. آپ مسلمان، اب یہ دیکھ لو آپ لوگوں کے نہیں آپ حق دکھائیں میں نا نا. ایک بندے اب نے پاکستان میں، ایک منٹ میری بات سنو، او ایک یار بات کا جواب دو آپ، کہ پاکستان میں واحد ایک بندے جس نے آپ لوگوں کے حق میں بات کی تھی، آپ مجھے اس بندے کا نام بتا دو. وہ جبران ناصر تھا. کون؟ جبران ناصر نام جبران سنا ہے؟ ناصر نہیں ہے. ابھی بات کرو آپ،
इमरान खान ने आप लोगों के हक में बात की थी कि उनका मा- एक अपना अकीदा है, अच्छा चले, ठीक ठीक है। है, आज इमरान खान किधर है? ठीक है, जिधर सारे उधर वो भी। ठीक है, वाहिद एक पॉलिटिकल लीडर एक इमरान खान था, ठीक है, उसने यही बात की थी कि ठीक है उनका अपना अकीदा, उनको रहने दो, उनके अकीदे पे वो खुद ठीक है, जवाब दे होंगे। ठीक, बिल्कुल सही है, सही है हमजा भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। तो आपके बड़े अच्छे ख्यालात हैं, तो अल्लाह करे सारी कौम का इसी तरह ही ख्याल बन जाए, तो हमारा मुल्क भी खुशहाल भी हो जाए और अमन भी हो जाए और जन्नत बेनज़ीर बन जाए। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, हमें पसंद आई हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इन पे अमल करने की। सर मैंने तो कोई आपको नसीहत वैसे भी की नहीं है, सही है कि आप ये करो, जैसे नहीं, एक कैजुअली बात की है कि हम जी कौन है। जी जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर, बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। मियाँ साहब हमजा भाई को कह दें कि फॉलो ओ कर यार लें। कमाल हो गई है भा जी, पता नहीं कौन लोग हो तुसी, केड़े डिजाइनर दे बने हैं। उन्होंने इतनी हमें अच्छी बातें बताई हैं, उनसे हमने कुछ सीखना है कि उनको सिखाना है? वो तो सिखाने ਮਿਆਂ वाले ਸਾਹਿਬ भाई। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਾਚੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਜਮਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿੜਕਨੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਡਾਚੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਿਕਲਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं मक्खन नहीं निकलता। ਨਹੀਂ नहीं नहीं, देखे बात यह है कि उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं। मैंने असल एक शरीफ और अच्छी कौम के फ़र्द होने के, और ये पूरी कौम के लिए उनका लेसन है। तो हम सबको इस पे गौर व फिक्र करना चाहिए। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं। तो अल्लाह ताला नहीं, ने लेकिन उसके लिए मियाँ साहब मेरा एक छोटा सा जवाब है। उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं, कोई शक नहीं, लेकिन ये मुझे बताएं कि सिर्फ मुसलमान होना काफ़ी नहीं है। मुसलमान हम तब होंगे अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तर बातों पे हम अकीदा रखें, यकीन रखें, उनको मानने वाले हों। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब इस्लाम सरैया सितारे पर चला जाएगा, लोगों के दिलों से मिट जाएगा, यही हालत हो जाएगी जो आज हालत इनको नज़र आ रही है, और ये आज से 125 साल पहले हालत हो चुकी थी, जिसको देख के बड़े बड़े उलमा ने, अल्लामा इकबाल ने कहा था मुसलमानों को मुखातिब होके कि वज़ा में तुम हो नसारा, है मुसलमानों तुम अपनी कता वज़ा में यहूद ईसाइयों की तरह हो गए हो। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, रहने सहने में तुम्हारा हिंदुओं जैसा हो गया है। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आज तो इनको आज नज़र आ रहा है, अल्लामा इकबाल को 125 साल पहले ये बात हो गई थी, नज़र आ गई थी। फिर बाज़ बुज़ुर्गों ने कहा ये बुत पर्दा नहीं करते, खुदा ज़ाहिर नहीं होता, गनीमत ये ज़माना है कि मैं काफिर नहीं होता। अल्लामा हाली ने क्या कहा, न इस्लाम रहा दीन बाकी, न इस्लाम बाकी, फ़कत इस्लाम का रह गया नाम बाकी। अल्लामा हाली पीट रहे हैं अपने मुसद्दस हाली में, पढ़ के तो देखें। तो क्या कहा, मतलब ये था कि एक आने वाला आएगा, मसीह मऊद आएगा, सारे मुसलमान जब तक इकट्ठे नहीं होंगे उस वक़्त तक जो है वहदत मुसलमानों में पैदा नहीं होगी, नंबर एक। नंबर दो, इन्होंने इतराज़ कर दिया कि लो जी खलीफा साहब फ़लस्तीन पे क्यों नहीं बात कर रहे, फलां पे क्यों नहीं बात, इनको पता ही नहीं है। और वो मिर्ज़ा चले साहब ने भी वो चले अच्छा। गए हैं, वो चले गए हैं। उनका वो बैग पे गए थे, वो बैग पे ज़्यादा देर जाने से बंदा चला जाता है। अच्छा तो ठीक बड़ा है। मकसद है कि पता नहीं, मैं कोई और किसी मुल्क की ज़ुबान, मेरा ख्याल है मेरी बातें कुछ ना और तरह के समझ नहीं आती आप भाइयों को। तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा हमें नसीहतें की हैं। तो कुछ भाई होते हैं या दोस्त होते हैं जो नसीहतें करने वाले होते हैं, तो उनको नसीहतों की हद तक रखना चाहिए। उनसे आगे कुछ लेना देने वाला काम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो राइट। हाँ, तो मैं वही अर्ज़ कर रहा था, लेकिन किसी को समझ में नहीं आती मेरी बात। नहीं आ गई थी, मुझे आ गई थी। बात है ताइए तो आधा घंटा लाता, 2 घंटे उन्होंने लाना से देते थे।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਅभी ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੱਥ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜੀ ਸ਼ਰੀ ਭਾਈ ਵੈਲਕਮ, अस्सलाम वालेकुम। ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह, ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰਾ ਸਲਾਮ। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਸੀਹਤ। ਨਸੀਹਤ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨਸਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੋਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਗੱਲ सिर्फ इतनी है, मुख्तसर सी बात यह है कि जो सवाल करता है ना उसको सिर्फ जवाब देना मकसद होना चाहिए, उसको उसके सवाल का जवाब दे दिया जाए। आगे मानना या ना मानना उसके जहन में या उसके दिल में तो हम घुस के उसको नहीं समझा सकते। ये तो हर एक का अपना मुकद्दर और अपना नसीब है, अल्लाह ताला किसको हिदायत देता है किसको नहीं देता। मकसद ये है कि उसको जवाब दे दिया जाए बस। बाकी मज़ीद उसके साथ अगर कोई सवाल हो तो वो ले लें, वरना उनसे कहें कि आपको जवाब दे दिया, अब आप सोचें समझें, आगे आपका नसीब। बिल्कुल बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, सुफियान भाई आए हैं जी। सुफियान भाई वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मियाँ जी सुनाए, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। दोस्त जी हम भी ठीक, जज़ाकल्लाह खैर कि आपने ऊपर ली है। मैं बस नीचे बैठ के सुन रहा था। जी मेरा जमात से ताल्लुक़ है और मैं जर्मनी जी से जी, हूँ। पता मुझे पता है, मुझे पहचान हो जाती है जो अपने भाई होते हैं, इसलिए तो मैं खुद बेधड़क होके इनवाइट कर लेता हूँ। बस वो मेरे पास काम का शोर बहुत था तो इसलिए मैंने म्यूट लगाया हुआ था। अच्छा अच्छा, ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी जी, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अगर जी कोई तो आए ऊपर लेना चाहें उसको तो मुझे उतार के ले सकते हैं। नहीं, अब मेरा टाइम भी 4 बजने वाले हैं, अभी बस डोगर भाई आ गए हैं, आफ्ताब भाई आ गए हैं, शरी भाई। एक सवाल था, अगर जी करो, अगर इजाजत हो तो। जी, शरी भाई ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। ਸ਼ਰੀ ਭਾਈ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ। और मैनू कितों जवाब आते। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਸ਼ਰੀਫ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦਾ ਆਇਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫ ਰੱਖੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਆਇਤ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੇ ਇਲਮ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਕੈਮ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਅਗਰ ਗਲਤ ਗੱਲ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਫੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। तो इसलिए अगर नहीं थे सही तरीके ਨਾਲ जहन में चीज़ आ रही या नहीं पता तो वो बयान ही नहीं करनी चाहिए। जी डोगर अहमद भाई। जी मियां साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जी मियां साहब, मैं सिर्फ सलाम करने के लिए आया था ऊपर, जी तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आप कह रहे थे कि वक्त ज़ाया नहीं, नीचे हमें बहुत अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा होता है इस चीज़ का कि हमें अपने ऊपर भी गौर व फिक्र करने का एक मौका मिलता है। मियाँ साहब ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜਵਾਬ। जी जी दिल बिल्कुल। से ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਲੇकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू मेरा जवाब है। अच्छा जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। देखो पूरा हो गया ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਟਾ ਅੱਜ ਦਾ। सही है। अल्लाह ताला खुश रखे, पर अल्लाह ताला शहीद साहब ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਵਾਲ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਵਾਲੇकुम सलाम रहमतुल्लाह। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਨੀਚੇ ਬਾਬੂ ਭਾਈ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਰਫਾਨ ਭਾਈ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਵਕਫਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਏ, 3-4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸੰਭਾਲੋ ਜੀ, ਜ਼ਰਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਲੀ ਮੂਡ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਇhtਰਾਮ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹਾ ਫਰੈਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਡਰਾਈਵ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਮਾਦਰਤ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਡਰ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆਏ ਆ ਉਹ ਕਿ ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਭਾਈ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਮਾਤੀ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਨੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ अलैहिस्सलाम ने जिस जमात की बुनियाद रखी है ना,
और जो एक सिस्टम और निज़ाम के तहत चल रही खुलफा वक़्त ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਬੋਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ। ਕਿ ਗੱਲ ਹੀ ਐਸੀ ਪਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਂਗਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸੇ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮੌਦ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅਕਦਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਅਹਿਮਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਹਿਮਦੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈ ਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਬਰ ਔਰ ਹੌਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੈਸੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਮਾਮ ਵਕਤ ਦੀ ਬੈਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਮ ਵਕਤ ਦੀ ਬੈਤ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਪਾਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਇਮਾਮ ਵਕਤ ਦੀ ਬੈਤ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਹਦੀਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਮ ਵਕਤ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇਮਾਮ, ਇੱਕ ਮਮੂਰ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕਰਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਈਮਾਨ ਦਾ ਟੇਸਟ, ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ, ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਨਾਲ ਤਲਕ ਦਾ ਮਜ਼ਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਅਫਾਲ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਅਮਾਲ ਤੋਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣਗੇ? ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਰਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਤਰਜ਼ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਲਹਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਲਹਿਨ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਇਹ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹਰ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ, ਹਰ ਮਿਆਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮਿਆਰ 165ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ 150 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ, ਕਿਤੇ 200 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰ 3 'ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਸਲਾਮ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਇਹ ਵੇ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੇ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੇ ਨੰਬਰ 1, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤਬਲੀਗ ਤੇ ਚੱਲਿਓ, ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਸੀਹਤ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤਬਲੀਗ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਐਸਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿਆਰ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ 99 ਕਹਾਂਗਾ % ਨੇ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ 125 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਟਿਕਟ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲਿਆ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਟਿਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਤਰ ਕੇ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਟਿਕਟ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੌਲ ਚ ਖਾ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਿਸਾਲਾਂ। ਸਾਡੇ ਜੱਜਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ, ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਕੋਲ ਕੇਸ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਲਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜੱਜ ਕੋਲ ਕੇਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਐਸੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਲੋਕ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਬੈਠਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ, ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਾਲੀ ਮੂਡ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੰਜ਼ੋ ਮਜ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨੇ, ਤਿਰਾਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਖਲਾਕੀ ਮਿਆਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਾਡਾ ਤੰਜ਼ੋ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਤੀਫ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਸ਼ਰੀ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ذاتی ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸੀਹਤ ਫਰਮਾਈ ਹੈ। اللہ تعالیٰ جزا دے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے تھانوں۔ جی جی شیر بھائی جزاک اللہ۔ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਾਦੀ ਭਾਈ ਨੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਸਟ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 5-6 ਘੰਟੇ ਲਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੋਸਟ ਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਲੈਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਈ ਦਫਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਇਆ ਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਲ 'ਚ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲਾਈਵ ਤੇ ਗਏ, ਉਸ ਲਾਈਵ ਤੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਦਾ ਆਦਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਛੱਡਣੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲੀਚੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁਸਰਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਲੀਚੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਖਲੋਤੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਚ ਵਿੱਚ ਤਲ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਏ ਡਾਂਟਣ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾਪਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦੀ। इरफान भाई जमात अहमदिया का अच्छा नहीं, पहले सुहेल भाई आए ने, वो अपनी प्यारी मेरी 2-4 गल्लां कर लें फिर मैं कर दांगा। तो नासर भाई क्यों बैक ते चले गए? जी सुहेल भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे भाई वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का बड़ा एहसान है जी, इस्लाम अहमदियत की पुरलुत्फ फिजाओं से लुत्फानंदोज़ भी हो रहे हैं। वहाँ जमात अहमदियत का बेहद शुक्रगुजारा कि उन्हें वाबी बरेलवी दियोबंदी अहले तशी जड़े इस्लाम मुखालिफ अकायद ते कुरान मुखालिफ अकायद तो जान छुड़ा के इस्लाम अहमदियत दी हकीकी और सच्चे इस्लाम की आगोश दे विच जगह दित्ती सानू जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਮੀਨ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਬੋਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। नहीं नहीं कोई नहीं। ये वही भाई हैं जो कहते होते हैं कि लब कुशाई कर सकता हूँ। हाँ जी हाँ जी, लब कुशाई वाले ने आज इन्होंने वो नहीं कहा, वो इनका बड़ा प्यारा अंदाज है क्योंकि लब कुशाई वो जरा कह दें जी जरा एक दफ़ा। हाँ जी मियाँ साहब, लब कुशाई की इजाज़त की जसारत कर सकता हूँ या ना ही समझा? बिल्कुल जी बिल्कुल। निकाब कुशाई चाहे कर ले, लब कुशाई कर ले, कोई ना कोई। अच्छा मैं अर्ज़ करने लगा था, तेरा माइक बंद कर ले सुहेल भाई तो लब कुशाई की मुझे भी इजाज़त मिल जाए। कि बात यह है कि जमात अहमदिया का जो म्यार है ना, वो एक महज़ब और पुरशफ़क़त और दीनदार और इस्लाह करने वाली माँ की तरह का है आलम इस्लाम में। अब इस वक्त अब माँ का बच्चा जो होता है ना, वो उससे चाहे एक बच्चा होता है जो एक ही बात को 20 दफ़ा पूछता है तो वो उकताती नहीं है। वो उसे उठा के गली में नहीं फेंक देती कि जा निकल थल्लो मगरू लो मेरे, क्योंकि फिर वो माँ ही नहीं है। अच्छा एक बच्चा होता है वो शरारतें बड़ी करता है, मोहल्ले में कभी किसी को छेड़ा, किसी बच्चे को मारा है। हाँ उसे कभी कभी सख्ती से थोड़ा सा मकसद है कि समझाना पड़ता है, डांट डपट करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी उसको घर से निकालती नहीं है। ठीक है ना? तो इस तरह के मिले जुले जो जमात अहमदिया से हट के हमारे गैर जमात भाइयाँ आते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि उसकी नेचर के मुताबिक उसके साथ एहसन तरीके से बर्ताव किया जाए।
तो ये मेरी गुजारिश है और यही रिक्वेस्ट है तमाम अहमदी भाइयों से जो भी सोशल मीडिया पे हैं। और इस पे अगर मज़ीद कोई नासिर भाई जी कोई बात मैं बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की है। वो असल में हमें क्योंकि जमात अहमदिया से हमारा ताल्लुक़ है और खुदा का फ़ज़ल है हर अहमदी पर, मुखलिस अहमदी है, उसने सब कुछ पढ़ा भी होता है, उसने सब कुछ सुना भी होता है तकरीरों से, जलसों से, तंजीमों से। तो फिर हम काले ज़्यादा जल्दी पड़ जाते हैं कि मियाँ साहब अब जवाब दे रहे हैं तो मेरे जहन विच भी एक आई है तो मैं भी फिर ना वो पंजाबी च कहंदे ने लोच ताल लवां। ठीक है या तो ज़रा सख्त सी बात, बहरहाल लेकिन आइंदा तू ये सोच लो कि ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਟੋ ਸੱਟੋ ਵਿੱਚ ਕੜਾਈ ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੜਾਈ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੋਸਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਨ ਦਸਤੀ ਹੈ ਸੱਟ ਲਓ ਵਿੱਚ। साठ लोग बिल्कुल सही गल है। तो लेकिन हमें देखें, हम एक दूसरे की बातें, आप यकीन करें कोई भी बात करें उसमें किसी न किसी में बड़ा अहम नुक्ता होता है, कोई अहम बात होती है। बेशक हमारा अनपढ़ अहमदी भी हो ना तो खुदा के फजल से उसकी बात में एक वज़न होता है, लेकिन ये थोड़ा सा सब्र कर लिया करें कि अगर कोई बात कर रहे हैं, मियाँ साहब कर रहे हैं, माजिद भाई कर माजा साहब कर रहे हैं या जो भी कर ताहिर साहब कर रहे हैं, तो उनकी बात को गौर से सुने और यही समझें कि मुझे इस बात का नहीं पता, तो फिर हम इसको लर्न करेंगे। बल्कि मैं तो आप यकीन करें मैंने कापी पेंसिल साथ रखी होती है और मैं बाज़-औक़ात मियाँ साहब की बातों की, इब्न माजा साहब की बातों की, अपना ये जो है सुभान भाई की बातों का मैं नोट्स लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ ये बात। तो इस तरह अगर करेंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर जब कहीं किसी को हमने पैगाम पहुँचाना है तो अच्छे तरीके से हम पहुँचा सकते हैं। और आखिरी बात मैं ये अर्ज़ करूँगा, एक ही बात कि जब हर अहमदी अपने ज़हन में ये एक चीज़ बिठा ले कि मैंने अपनी ज़ुबान से कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं निकालना जिससे मुखालफ को मेरी अकाबरीन पर या मेरी जमात पर कोई गैर महज़ब लफ्ज़ इस्तेमाल करने की जिसारत पड़े। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बजा बजा। बस पहला कंट्रोल आपका अपने आप पर होना चाहिए। अच्छा जी, मेरे पास बात से ज़्यादा है कि मैं इनको गाली दूं और इनको गालियां बकूं और ज़्यादा गैरत शो करूं? क्या मेरी तालीम ये है? खुदा की गैरत ज़्यादा है जिसने भेजा है मिर्ज़ा साहब को, जो उनकी पुश्त पर बैठा है। तो फिर अच्छा। खुदा खुद अपनी गैरत दिखाने वाला है, वो खुद पकड़ करने वाला है। एक मिनट, ये डिस्प्ले पे देखें, ये जो साहब अभी आए हैं और जो ये कलाम करके गए हैं, ये इनकी हुलिया है और पीछे मस्जिद नबवी है। तो इस हुलिये में ये अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं और अपने मकसद गो इस्लाम से या मुसलमानों से इनके किरदार की वजह से तो कोई इनका तल्लक या रिश्ता नज़र नहीं आता, लेकिन मैंने सिर्फ अवामुन्नास को दिखाने के लिए ये इनकी पिक लगाई है कि ये साहब थे जो अभी यहाँ पे अपना वाज शरीफ करके गए हैं। कोई बात नहीं मियाँ साहब, कोई बात नहीं। मैं एक छोटी सी बात एक दुआ पढ़नी, आखिर पे एक दुआ पढ़ना चाहता था, सिर्फ एक दुआ कि मैं इन्होंने जो हरकत की है सिर्फ एक दुआ हम पढ़ देते हैं। कुरान करीम की दुआ है, अल्लाहुम्मा मज़्ज़िक़हुम कुल्ला मुमज़्ज़क़िन वस्सहिक़हुम तस्हीक़ा। तर्जुमा आप कर दें। ये हदीस की दुआ है और मसीह इस्लाम की दुआ है। जी जी, और उसका मतलब ये है कि अल्लाह जी अल्लाहुम्मा ए अल्लाह मज़्ज़िक़हुम, इनको हलाक कर दे, तबाह कर दे, टुकड़े टुकड़े कर दे, मज़्ज़िक़हुम वस्साहिक़हुम तस्हीक़ा, और उनको पीस कर रख दे, अच्छी तरह पीस कर रखना। तस्हीक़ का मतलब होता है पीस कर रखना। शरीफ भाई, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, ये तो अपनी जगह सारी बातें। तो एक दफ़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान बैठे हुए थे,
तो सहाबा ने, हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा, फरमाया एक ज़माना ऐसा बदबख्त ज़माना आएगा कि लोग अपने माँ बाप को गालियाँ देंगे। अब सहाबा हुजूर की मजलिस में है और हुजूर ये बात बता रहे हैं, तो सहाबा तो ये सोच भी नहीं सकते थे, तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। हुजूर ने फरमाया कि वो सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह वो कौन सा ज़माना आएगा? फरमाया वो कौन लोग होंगे? फरमाया वो लोग किसी के माँ बाप को जब गाली देंगे तो वो अपने माँ बाप को गाली दे रहे होंगे। इस देखें, मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को वो गाली नहीं की, उसके माँ बाप को गाली उसने दी है। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को इस गाली से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, नंबर एक। दूसरा, हमारे भाई ने पूछा कि इनकी बख्शिश होगी, देखें हम फिर भी नहीं कहते। खुदा गफूर रहीम है, वो बख्श भी सकता है, वो सज़ा भी दे सकता है। ना मियाँ साहब बख्शने वाले हैं, ना मैं बख्शने वाला हूँ, ना शहरी भाई बख्शने वाले हैं। बख्शिश का मामला खुदा के साथ है, इसलिए हमें किसी के बारे में कभी भी सोचना भी नहीं चाहिए, कहना भी नहीं चाहिए कि इनकी बख्शिश होनी है कि नहीं। देखिए हर इंसान लेकिन हम ये कहते हैं कि जो मोमिन हैं और अच्छे अमाल करते हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत अता करेगा। बस बहुत खूबसूरत बात की। देखिए बख्शिश की जहाँ तक बात है, वो अभी उन्होंने छोटी सी शरीफ भाई, एक छोटी सी बात, आखिरी बात मैं करके फिर करता हूँ। वो कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहीं रास्ते में जा रहे थे और साथ उनके हवारी थे, तो एक कुत्ता मरा पड़ा था। अब दो बंदों का तबसरा करें, तबसरा सुने। उस बंदे ने कहा कि देखें इस कुत्ते से कितनी गंदी बू आ रही है, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया देखो इसके दांत कितने चमक रहे हैं जी। तो देखे तबसरा एक कुत्ते पे है, उनके एक हवारी का है कि कितनी गंदी बू आ रही है, और एक नबी का तबसरा है कि इसके दांत कितने चमक रहे हैं। तो दोनों तबसरों में कितना फ़र्क है। अच्छा, ये हमारी एक बहन आई हैं, इनको ज़रा थोड़ा सा दे दे टाइम। जी बी ऑनेस्ट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। सॉरी भाई, ये मैं सुन रही थी, मेरी पॉकेट में था, वो खुद बहुत रिक्वेस्ट हो गई है, तो खुद बहुत ही मैं एंटर हो गई, मैंने नहीं किया था, मैं बस सुन रही हूँ। अच्छा, चलो ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी शरीफ भाई आप बात करें तो फिर मैंने ये जो पिक लगाई है ना जी, वो बात तो इस पे मैंने कोई एक बात भी करनी है। जी आपने तो ज़रूर करनी है, आपकी बात पे तो एंड होना है। अल नासिर साहब ने जो बात की है ना कि हमें तो ये हक़ नहीं है कि हम किसी के बारे में कहें, ये तो खालिसतन खुदा ताला का इस्तेकाक है कि बख्शिश किसकी वो करता है, हमें तो अपना नहीं पता। तो बात ऐसे है कि कब किसी को ईमान नसीब हो जाए। अभी वो जो दोस्त जो गालियाँ दे के गए हैं, अगर उन्होंने बात की, हमारी गुफ्तगू सुनी हो, तो ऐन मुमकिन है कि अल्लाह ताला हमारी ज़बान में बरकत रख दे और वो हिदायत पा जाएँ। वो सोचें कि यार मैं नबी पाक से अपने आप को मुंसलिक करता हूँ, निस्बत उनसे मैं बनाता हूँ अपनी, तो मैंने ये क्या हरकत की है। तो वो सजदे में गिर जाएँ, तौबा कर लें, और उसके अंतज में अल्लाह ताला उनको कभी हिदायत दे दे। मुझे वाक़या याद आ गया कि एक मुल्हिद था, तो वो कबूतरों को दाने डाल रहा था। तो उसको किसी मुसलमान ने कहा तू ये जो काम कर रहा है, कबूतरों को दाने डाल रहा है, तेरी कौन सा बख्शिश होनी है? कर तो नेक ही रहा है, लेकिन तू तो मुल्हिद है, तो तेरी तो बख्शिश ही नहीं होनी। तो बाद में कई साल के बाद वो मुसलमान जब हज करने गया, तो वहाँ पे उसने देखा तो वो भी हज कर रहा था। तो उसने उसको देखा और पहचान लिया, तो उसने कहा तू इधर, उसने कहा तूने तो मुझे कहा था कि तेरी बख्शिश नहीं होनी, वो देख ले कबूतरों को दाना डालने की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दे दी और मैं मुसलमान हो गया। तो ये किसी का कोई पता नहीं कब किसी ने हिदायत ले लेनी है, ये तो अल्लाह का काम है। अगर वो सही फितरत हैं तो ज़रूर सोचेंगे, आखिर इंसान हैं, माँ बाप वाले हैं, बहन भाइयों वाले होंगे, सोचेंगे ज़रूर कि यार मुझसे क्या हरकत हो गई है। तो हो सकता है सजदे में गिर जाएं, अल्लाह से माफ़ी और तौबा तलब करें, तो खुदा ताला उनके दिल में हिदायत डाल दे। जज़ाकल्लाह। और दूसरी इसमें ये भी बात है, देखें बात निकलती है। अब देखें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जो दुश्मनी की इस्लाम की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हुजूर को कत्ल के कई इरादे बनाए कत्ल करने के। हुजूर नमाज तहज्जुद पढ़ रहे थे और एक दिन गए, कहते हैं कि मैं गया तो हुजूर तहज्जुद अदा फरमा रहे थे। हुजूर ने तहज्जुद ख़त्म की बग़ैर देखे, लाइट भी नहीं थी उस वक़्त। तो हुजूर ने फरमाया, अब हज़रत उमर कहते हैं मैं पीछे था, मुझे नहीं देखा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुखातिब करके फ़रमाया कि उमर
तुम्हें क्या हो गया है, ना तुम दिन को मेरा पीछा छोड़ते हो ना रात को पीछा छोड़ते हो। जब ये अल्फाज कहे तो हज़रत उमर कहते हैं अमलन उस वक़्त मैं मुसलमान हो चुका था। फिर वो एक अलग वाक़या पेश आया, और ये मौला इस्लाम ने अपनी किताबों में वाक़या लिखा है। फिर वो वाक़या पेश आया कि कुछ अरसे के बाद जब कत्ल के इरादे से निकले तो रास्ते में कोई बंदा मिला कि उमर कहाँ जा रहे हो इतने गुस्से में, तलवार पकड़ी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह मोहम्मद का आज काम तमाम करने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मोहम्मद का काम तुमने कहा क्या तमाम करना है, अपने बहन भाई को देखो, सईद बिन ज़ैद, तुम्हारी बहन इस्लाम ला चुकी है, सईद बिन ज़ैद मुसलमान हो चुका है। होती है 2 गुना ज़्यादा, तो अगर 63 को डबल करें तो 126 बनती है। वो इस तरह हदीस है। तो रसूल पाक से पहले हज़रत ईसा थे, उस हिसाब से ये अंदाज़ा है। तो माजरत के साथ मुझे जो आपने अभी फरमाया उसकी समझ नहीं लगी कि एक नबी से पिछले नबी की उम्र डबल की जाती है, यानी कि वो उससे डबल उम्र पाता है। अच्छा यानी कि चलो रसूल पाक की उम्र 63 बरस थी ना, जी जी तो और उन्होंने कहा कि मुझसे पहले नबी की उम्र मुझसे 2 गुना ज़्यादा थी, तो 2 गुना ज़्यादा करें तो वो फिर 63 प्लस 63 126 राउंड अबाउट। जी ठीक है। तो ठीक इसके है, ऊपर इसकी हदीस है, वो हम इंशाल्लाह कल मेरे पास आएंगे भाई जो रिसर्चर हैं, तो वो दे देंगे आपको हवाला उसका। जी ठीक है। मेरा एक और सवाल था, अगर टाइम है या अगर कोई और सवाल ना करना चाहे तो अगर आप इजाज़त कल तशरीफ़ लाएँ तो मैं जर्मनी में रात 11 बजे लाइव ऑन करते हैं, अर्ली आ जाएं, तो फिर मज़ीद भी आपके जितने सवाल होंगे ना तो इंशाल्लाह अच्छे तरीके से कर लेंगे गुफ्तगू। क्या ख्याल? जी ठीक है। अभी मेरे को पास 4:20 हो गए हैं। जी ठीक है, कोई मसला ठीक है। नहीं। अच्छा, मैं मुख्तसर सी बात इस भाई पे करना चाह रहा था। माइक ज़रा बंद कर लें अपना, शमी भाई। अच्छा, मैं बात में ये करने लगा था कि मैंने इनकी प्रोफाइल चेक की थी, तो मैंने देखा कि ये कोई आलम फाजल टाइप बंदे हैं, तो इन कोई आई होप के कोई मतलब कि इल्मी गुफ्तगू होगी। तो पीछे मस्जिद नबवी भी थी, सामने इनका चेहरा भी ऐसा था, तो मैंने कहा हमारे गैर जमात लोग भी बैठे होते हैं और हमारे अहमदी बाप भी होते हैं और ऊपर हमारे अहमदी भी होते हैं, तो चलें ये कोई आलम टाइप बंदे हैं, तो इनको पिक करते हैं और देखते हैं कि ये क्या कोई कुरान हदीस से हमारे साथ बात करते हैं। ये तो शक नहीं था कि ये गैर जमाती हैं, तो इसलिए इनको पिक किया था। तो लेकिन इतनी एहतियाती तदाबीर के बावजूद, तो लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह इनका भला करे। जो भी करके गए हैं अपने लिए करके गए हैं, हमारे लिए कुछ नहीं करके गए। तो ये मैंने बस इनकी तस्वीर लगाने का मेरा ये मकसद था। जो कि उसमें एक गलती आपने कर दी, और वो गलती ऐसी है कि वो नहीं, एक मिनट आपने अच्छा किया है। 1 मिनट, मैंने गलती नहीं की, मैंने अंदाजन जो है ना अल्फाज मफहूमन अदा की है। मफहूम गलत था ना। अच्छा चले, आप दुरुस्त बड़ा करते हैं। नुकसान नहीं, कोई होने नुकसान का नहीं। मुझे खदशा हुआ है। नहीं, आपने कोई जो नहीं। बयान फरमाया मफहूम वो ये था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझसे पहले होने वाले नबी की उम्र दुगनी है। तो ये बिल्कुल उलट बात है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया उस हदीस के मुताबिक, जो मैं समझता हूँ मफहूम वो ये है कि बाद में होने वाले नबी की उम्र अपने से पहले नबी से कम निसफ होती। अच्छा ठीक है। तो इसका जिस तरह आपने बताया, इस तरह लाजमी बात यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अगर 125 साल है, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से एक नबी जो पहले हैं उनकी 250 साल होगी, और अच्छा। उनसे जो एक नबी पहले हैं उनकी 500 बन जाएगी। तो इस तरह नबियों की उम्रें जो है वो हज़ारों साल तक पहुँच जाएंगी। इसलिए ये सारा फलसफा जो आपने बयान फरमाया आपने मफहूम में वो गलत साबित होता है। ठीक है। तो बाद में आने वाले नबी की उम्र कम से कम आधी होनी ज़रूरी है, ये है। अच्छा, तो ठीक। इसका मतलब यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की 120 साल है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जो है
वो 60 साल या 60 साल से ज़्यादा होनी लाजम है। ये है उस इरशाद का जो मैं नहीं पढ़ता है। तो ठीक है। इतनी सी बात थी जी। चलो जज़ाकल्लाह, बड़ा अच्छा किया आपने, दुरुस्तगी कर दी। तो इस कौल या हदीस का कोई रेफरेंस है आपके ज़हन में? मैं इस वक्त ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे पास नहीं नहीं, रेफरेंस तो नहीं है। जी मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं इसमें तो मुश्किल है, लेकिन वो बाद में जो मुय्यन हदीस है वो ढूंढ के की जा सकती है। यानी सिद्धू भाई, मैं यही बात करने के लिए मियाँ साहब ऊपर आया था। वैसे अच्छा मैं थोड़ा अभी घर पहुँचा ही हूँ, ठीक तो है। लेकिन ये बात मैंने भी यही कहनी थी जो आपको सिद्धू भाई ने कह दिया ना। चलें, जज़ाकल्लाह। मैंने कौन सा उससे, हम तो हर वक्त सीखने की पोजीशन में होते हैं, लेकिन चलें, मसला जो था वो तो मकसद एक किस्म का, जो उन्होंने सवाल किया था कि वो परेशान थे कि शायद इस तरह का कोई हदीस या रवायत है ही नहीं, और उनको जो था एक ज़हन में खलश, वो उसकी मज़ीद तस्दीक करना चाह रहे थे, तो वो तो अल्लाह के फल से हो गई। चले, आपने दुरुस्तगी कर दी दोनों भाइयों में, मेरे इल्म में भी इजाफा हो गया, कोई मसला नहीं, लेकिन बात तो हकीकत है ना। हाँ हाँ जी, बहुत शुक्रिया। मेरा एक और मासूमाना सा सवाल है जी कि जी ये क्या फ़िज़िकल उम्र की बात हो रही है हज़ारों साल, या मुझे जो समझ आई है, या उन्हों के नबूवत के ज़माने की बात हो रही है? जी सिद्धू भाई, ये फिजिकल उम्र की बात हो रही है। फ़िज़िकल उम्र के बारे में मैंने उमर भाई से ये सवाल किया था कि क्या नबियों की उम्र हज़ारों साल तक जा सकती है, तो उन्होंने का ये कहना था, मेरे ख्याल से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बात कर रहा था मैं, तो उन्होंने का ये कहना था कि हज़ारों साल नबी की उम्र फ़िज़िकली ये कहीं सुनने को या पढ़ने को नहीं मिलता, लेकिन उनकी नबूवत का ज़माना वो हज़ारों साल तक मिलता है। उनका उम्र का जो क्राइटेरिया कह सकते हैं वो नबूवत पे बेस होता है कि हज़ारों साल उनकी नबूवत ज़िंदा रही। फरमाया है कि हमने हर नबी के लिए शैतानों और जिन्नों को दुश्मन बना दिया है। मैं बड़ा हैरान हुआ इस आयत करीमा को पढ़ के कि अल्लाह ने शैतानों और जिन्नों को क्यों दुश्मन बना दिया है। ये अल्लाह ने मतलब फरमाया। और आगे अगली आयत में इस किस्म का मफहूम है ताकि सिद्धू भाई आपकी आवाज़ बंद हो गई है। हमने यानी कि अल्लाह एक ताला ने बात बयान फरमाया कि ये लाजिम बात है कि जो इस तरह के हद दर्जा पर पहुंचे हुए शयातीन हैं, उनकी बख्शिश का रास्ता अल्लाह ताला ने बंद फरमा दिया हुआ है। नजर यही आता है। तो ये वो लोग हैं, इसलिए आप इनकी फिक्र ना करें। नहीं नहीं, मैं तो नहीं फिक्र करता। मेरी आवाज आ रही है, बंद होगी? जी आ जी रही आ रही आवाज़ आ रही आ रही है। अच्छा, तो अब जो दूसरी बात थी वो थी हदीस की। एक बात हो रही थी हदीस की जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हदीस के, मेरी उम्र अगले आइंदा आने वाले नबी की उम्र लाजमन निसफ होती है। तो वो एक और बात है, और जो वो रेफरेंस दिया जा रहा है जो आपने जिक्र किया किसी दूसरे दोस्त के साथ डिस्कस किया आपने, वो अंबिया के अदवार की उम्र है। तो जैसे हज़रत नूह की उम्र के बारे में बोला जाता है 900 साल थी, इस किस्म की बातें, तो वो एक अलग बहस है। तो वो अदवार की उम्र अलग है और फिजिकल उम्र अलग। जी जज़ाकल्लाह। जी बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह आपका। मैं थोड़ा सा इसी बात पे कंफ्यूज था कोई नहीं कि शामिल भाई, मैं आप पता नहीं जहाँ भी हैं टाइम सेट कर लें। काकसार मैं यूके में जर्मन, रहता हूँ फ़िलहाल, यहाँ पे 3:27, बल्कि मैं मुकामी में ही रहता हूँ। हाँ तो मेरी पास तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, कोई तो बात इसलिए नहीं। मैं मुरब्बी साहब से किसी से रब्ता नहीं कर सका, नहीं नहीं तो मैं नहीं, मस्जिद से 10 मिनट दूर रहता हूँ सिर्फ। कोई मसला नहीं। यहाँ भी अल्लाह के फल से हर किस्म की, जिस तरह के आपने रब्ता करना, भाई होते हैं हमारे पास यहाँ बैठे हुए, आप वो ना परेशानी लें। मियाँ साहब, एक हज़रत मसीह मौद ने खुद एक चीज़ फरमाई है, जी और ये हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि वो फरमाते हैं कि हमने कुत्तों को तुम पर मुसल्लत कर दिया और दरिंदों को तेरी बात से गुस्सा दिलाया। तो ये वो खसलत है जो आपके पास आती है ना कभी कभार रोज़ाना, तो ये उन्होंने खुद फरमा दिया हुआ कि ये क्या चीज़ें हैं। और मसला ये है कि अपनी एक ब्रीड से नहीं ना आते, ये मुख्तलिफ ब्रीड के जो है ना अपने ऊपर गिलाफ चढ़ा के आते हैं, क्योंकि एक ब्रीड का पता हो ना तो बंदा चले उसे कुछ कर देता है। अब ये अपने उलमा की तस्वीरें लगा के आ रहा है
तो हम तो उलमा का एहतराम करते हैं और यही समझते हैं, हुस्न ज़न में होते हैं कि ये कोई आलम साहब होंगे, कोई अच्छी बात करेंगे या कोई दीनी बात करेंगे। तो ये हर तरह से धोखा देते हैं। तो ज़ाहिर बात है कि वो हज़रत मसीह मौद का जो आप बता रहे हैं वो बात भी अल्लाह ने पूरी करनी है। और एक कितने एक मज़े की बात है कि देखें, आपने जो बात बताई है उस पर मेरे ज़हन में एक बात आई है कि सबसे ज़्यादा गलीज़ तरीन जानवर जो है या हराम तरीन हराम कार, वो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूअर को कहा है। लेकिन हज़रत मसीह मौद के, अगर ये जो आप बात कर रहे हैं, तो हज़रत मसीह मौद के मुकज़्ज़बीन को या उन पे मुग़लज़ात बकने वालों को कुत्तों से तशबीह दी है। तो देखें इसमें भी कितनी हिकमत है कि जिसने भी जमात अहमदिया पे जुल्म किया है, जब से किया है, तो उस मुखालफ को ना खंजीर कहा गया है, ना सूअर कहा गया है, ना कोई और जानवर कहा गया है, उसे कुत्ते से ही तशबीह दी गई है। भट्टो को देख लें, भट्टो ने जुल्म किया था, उसे कुत्ता ही कहा गया। ज़ियाउल हक को देख लें, कुत्ता ही कहा गया। और जिसने भी उसके बाद अहमदियत और हज़रत मसीह मौद की शान अक़दस में बदकलामी की है, तकज़ीब की है, तो उसे कुत्ते से ही तशबीह दी जाती है। तो ये हवाला आपके पास है अहमदी साहब? मैं कोशिश करूंगा मिल जाए। ठीक है, तो अगर ये हवाला हो तो ज़रा दीजिएगा, इसको मैं इंशाल्लाह पढ़ूंगा यहाँ पे। फिर मैं जो आपने जितनी बात की है वो तो मैं समझ गया हूँ, बाकी अगर मैं पूरा पढ़ूंगा तो इस पर फिर मैं अपनी मकसद है कि थ्योरी दूंगा इसको पढ़ के। और जितनी मैंने दी है ये कोई गलत तो नहीं थी, तो सही कर दें मेरी। नहीं ठीक, बिल्कुल ठीक किया। मियाँ साहब, एक और हज़रत मसीह इस्लाम का एक शेर है, उसका तर्जुमा एक किताब है, उस 3 ज़ुबानों में, नज्मुल हुदा। जी जी अरबी। जी जी सिद्धू भाई, मैं मुझे मेरी आवाज़ से डिस्टर्ब हुई है, अब हाँ आ रही हाँ है आवाज़? हाँ जी आ रही। अच्छा ठीक है। तो वो उस किताब में इस्लाम ने ये फरमाया है, दुश्मन हमारे बियाबानों के खंजीर हो गए और उनकी औरतें कुत्तियों से बढ़ गई। ये उसका तर्जुमा है। और हज़रत मसीह वसल्लम के अल्फाज में है। वो इंतहाई हैरत अंगेज किताब है, उसको पढ़ें तो आपको एक अलग दुनिया में ले जाती है। लेकिन उसके दरमियान में ये एक मिसरे का तर्जुमा पढ़कर मुझे बड़ी हैरत हुई। और उसमें हज़रत मसीह वसल्लम ने मुसलमानों का तो जिक्र ही नहीं किया गया, उसमें सिर्फ ये अल्फाज है, दुश्मन हमारे। तो वो दुश्मन हमारे से मुराद इस्लाम के दुश्मनों का जिक्र हो रहा है वहाँ पर। और ये मौलवी उस सारी किताब को, जो कि हैरत अंगेज किताब है, उसको सारी को नज़रअंदाज करते हैं और सिर्फ इस जुमले को पकड़ते हैं और इन मुसलमानों को धोखा देते हैं। हाँ जी। तो वो तो हकीकत पर मबनी कलाम है कि अंबिया के जो दुश्मन होते हैं वो तो बियावानों के खंजीर हैं। जी आज़ूस ने इस ज़माने के मौलवियों को क्यों बंदर और खंजीर करार दिया, लफ्ज़ वो है हमारा। और ये बंदर और खंजीर मुनकरीन अंबिया के लिए इस्तेमाल हुआ है ज़्यादातर। जी तो वही अल्फाज मसलन फरमाए और इनको बड़ी तकलीफ पहुंचती है इससे। तो वो किताब, उसका अगर हवाला किसी को चाहिए हो तो उसका नज्मुल हुदा है, जी जी जिल्द 14 में है। जिल्द 14 में है। हाँ जी, 53 नंबर। तो मैं आपको बताऊं अपना सिद्धू भाई, नज्मुल हुदा पे ना मैंने कम अज़ कम पहले 10 सफ़े जो है ना, मैंने तकरीबन 20 दफ़ा पढ़ दिए हैं। हैरत अंगेज किताब है। कुछ ख़ास माहौल में ना, जब एक ख़ास सवाल होता है तो उस सवाल का जवाब मैं वो पहले 8 सफ़ा जो है ना पढ़ के देता हूँ। उसमें बहुत सारे सवालों के जवाब हैं इसमें। उसमें जो पहले 8 सफ़ों पे जो जवाब है ना, वो एक ख़ास मखसूस कुरान पाक की आयत के मुताबिक एक शख्सियत पे है। हाँ जी, वो अहमद रसूलुल्लाह पे। हाँ जी, तो वो मैं वो 8 सफ़े पढ़ देता हूँ बस, कुछ भी नहीं, बात करनी कोई नहीं। कि हज़रत मसीह मौद जो
खुद मकसद फैसला करके मैं उसमें कौन सा होता हूँ रद्द बदल करने वाला। और जो तशरीह या वो मकसद तशखीस खुद कर गए हैं तो किसी की बाकी फिर गुंजाइश ही नहीं। जी अयाज भाई वेलकम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम मियाँ जी, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अयाज भाई, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? शुक्र है ठीक है। बस अभी मस्जिद बैतुर्रहमान से वापस घर जा रहा हूँ माशाल्लाह। और मुबारक सिद्दीकी साहब की महफिल अटेंड की। ठीक है। तो आखिर में लोग उनके साथ सेल्फियाँ बना रहे थे। अच्छा। तो मैंने मुबारक साहब को कहा कि मुबारक साहब शुक्र करें साइंस ने तरक्की कर ली है, जी जी, वरना इतने ढेर लोगों ने अगर ऑटोग्राफ बुकें आपसे साइन करवानी होती तो आपका क्या हाल हो जाना। तो हंस पड़े वाकई इतनी ज्यादा सिग्नेचर कौन करता है यार। माशाल्लाह। लेकिन एक इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि अगर हम कभी लंदन में आए और मुबारक साहब से मुलाकात हुई तो वो कहेंगे हमने मियाँ साहब के साथ सेल्फी बनानी है। हालांकि वो मेरे बड़े जरूर मेरे वो बड़े भाई हैं, लेकिन वो कहेंगे मैंने मियाँ साहब के साथ सेल्फी बनानी है। चले कोई बात नहीं। अच्छा मियाँ जी, अभी बात हो रही है ना हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम का एक जुमला भी एक दोस्त ने बताया, आपने भी बताया कि वो किताब क्या है। देखिए एक बात होती है ना कि हम सख्त कलामी किसको कहते हैं, हमें इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना होता है सबसे पहले ना। देखिए मैं हैरान होता हूँ कि मैंने बाज़ लोगों की उससे सुना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात करते थे, देखिए ये हो सकता है कोई एक आध दफ़ा हो जिसने रवायत जिसने देखी उसने अपने हिसाब से बयान कर, वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात करते थे तो जोश से उनकी आवाज़ ऊंची हो जाती थी। ये एक बात बयान कर सकता हूँ। अब देखिए अगर एतराज़ करना तो कोई इस पे भी कर दे कि जी ऊंचा क्यों बोल रहे हो। एक सवाल है ना कि जी ऊंचा क्यों बोल रहे हो। अच्छा अब बात आती है, हम कहते हैं किसी को सख्त कलामी। देखिए दुनियावी तौर पर एक बंदा है जो दौलतमंद है और बड़ा रईस है और उसके आगे पीछे लोग हैं और वो है काफिर, और आप उसको कह रहे हो कि तू आग में जलेगा, तेरे पकोड़े तले जाएंगे, तो सख्त कलामी तो ये भी हो गई। बिल्कुल। तो एक चीज होती है कि आप इसको आइडेंटिफाई करते हो सबसे पहले ना कि सख्त कलामी है क्या, आप किसको कहते हो। देखिए है कि जैसे इंसानों की तबाही होती है ना, वैसे ही आपको जवाब भी देना पड़ता है, वैसे ही आपको ट्रीट भी करना पड़ता है, ठीक है ना। हर इंसान के लिए एक नुस्खा नहीं होता। अब देखें जिस तरह अगर मैं इसका हमेशा ही जवाब देता होता हूँ कि अगर कोई आप इस बात पे ही आपने बहस करनी है, एतराज़ करना है, तो फिर ठीक है हम एतराज़ कुरान से शुरू करेंगे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो अंबिया के मुखालफीन है, मुनकरीन है, ये बदतरीन मखलूक है। अब आए ना जरा बताएं बदतरीन मखलूक में कौन कौन शामिल है। फिर बदतरीन में तो सब कुछ शामिल है भाई, आओ करते जाओ शामिल सब कुछ। तो ठीक है फिर पहले एतराज़ कुरान पे कर लेते हैं। इसमें मैं ऐड करूंगा, बाकी आपकी बात ठीक है। जवाब दिया जाता है कोई इल्मी सवाल का, बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी से नहीं दिया जाता, ये ज़रूर बताया जाता है कि ये बदतमीज़ी है, और बदतमीज़ी कहते किसको हैं। तो ये लाजमी होता है कि जो इल्म को और बदतमीज़ी को अलग करना होता है। तो ये बात होती है, मैं जो समझता हूँ। एक दफ़ा क्या हुआ मदीना में एक रवायत ये भी बयान की जाती है कि यहूदी एक दो गुजर रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं अस्सलाम अलैकुम। ये सलाम को ना जरा सा बिगाड़ के सामा अलैकुम कहते थे, इसका मतलब बनता था तुम पे मौत आए। अस्सलाम अलैकुम सलामती है ना, तो बीच में से लाम हटा के अस्सलाम अलैकुम कहते थे बिगाड़ के। तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा अस्सलाम अलैकुम, तो उन्होंने आगे से कहा अलैकुम कि भाई तुम पे। अब आपको जी कर लगाओ फिर फतवा। तो ये बात होती है कि जैसी तबाही होती हैं उसके मुताबिक आपको बाज़ दफ़ा ट्रीटमेंट देनी पड़ती है उनको कि भाई जो तुम कह रहे हो वही तुम्हारे साथ हो।
तो ये चीज होती है कि भाई मैं दोस्त लेकिन मुखालफों को कहता होता हूँ याद कि भाई यार आपने बात करनी तो जी 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 बोले। हर चीज़ जो है ना वो अपने वक्त और माहौल के मुताबिक होती है। बिल्कुल अगर ठीक, हम एक खास इसी मौके माहौल के मुताबिक है। हाँ जी, लेकिन होता क्या है कि हम चूँकि पाकिस्तानी कौम है, हम एक ही स्टिक से ना हार से डोकी को वन रेट ही कर देते हैं। तो जी अगर जी हम ये बात जो आप कर रहे हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह और आपका एक्सपीरियंस है, आप करेंगे तो उस ख़ास वक्त के मुनासबत से करेंगे। लेकिन अगर हम इस चीज़ को इस तरह अलाउ करें ना, तो यहाँ पे तो हमारे अपने माइंड भी वही हैं, तो वो हर आने जाने वाले के साथ यही नुस्खा इस्तेमाल किया जाएगा और बदले में वो फिर बजाय सीधे रास्ते पे आने के उल्टा, क्योंकि देखें वो तो हमारे में हमारा कौन सा एहसान है, हमारे वालिदैन बस उनको अल्लाह ताला ने तौफीक दी तो वो ईमान ले आए। तो अगर आज समझे सोचे खुद को भी ये रखे ना, ये हर चीज़ का मयार कायम करने के लिए दो तरीके होने चाहिए। अगर हम ये समझे और यही तरीक़ाकार मयार रखें दूसरों के लिए, तो फिर खुद सोचे कि अगर हम उनकी जगह पे होते और हम ऐसे आ जाते तो हम क्या करते। अगर हम अहमदी ना होते और जैसा हमारे पास इन्वायरमेंट है जमायत अहमदिया के मुखालफत में या उनके अकायद की मुखालफत में, तो हमारा रवैया क्या होता जब हम किसी अहमदी के पास आते। बिल्कुल ठीक। हाँ, तो फिर इसको कहते हैं म्याना रवि, दरमियानी रास्ता। दरमियानी रास्ता यही है कि कोई भी आए और वो इस तरह का एटीट्यूड करे तो उसको डिस्कनेक्ट कर दें, उससे बहस मुबासा करें ही ना। ना उसको तो डिस्कनेक्ट कर दें यार, क्या करें। जो गालियाँ दे रहा है उसके जवाब में हम गालियाँ थोड़ी देंगे। बिल्कुल जी भाईजान। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, भाई ने जो बात की ना कि आवाज़ बुलंद हो जाना किसी के मुकाबले में, उसका अगर तो एक इंसान, मैं मिसाल दूंगा जमात के खुलफा की या अंबिया की, अगर तो वो एक ख़ताब कर रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं या तकरीर कर रहे हैं, तो उसमें बाज़ मकामात पे ऐसा होता है कि थोड़ी वो आवाज़ बुलंद करके बात करते हैं। कुछ फ़िक्रात ऐसे होते हैं कि मैसेज देना होता है, कोई पैगाम ऐसा देना होता है कि वो वाशगाफ अल्फाज में और जलाली रंग में दिया जाता है। एक होता है किसी के साथ पर्सनल आपकी बात हो रही है, उसमें धीमी आवाज़ करके बात की जाती है कि अगले की इंसल्ट ना हो, या कोई म्यूट कर ले, शोर बहुत है किसी का ना। याद भाई की तरफ से है। तो एक तो ये अंदाज़ होता है कि एक जैसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं आपसे मियाँ सब मुखातिब हूँ, तो मैं बहुत चीख के नहीं बोलूँगा, एक मैं आवाज़ को एक ऐसी लेवल पे रखूँगा कि जिससे आपकी बेअदबी ना हो। लेकिन अगर कोई शख्स ख़ताब कर रहा है और वो किसी मनसब पे खड़ा है और लोगों से एक इकट्ठ से ख़ताब कर रहा है, तो फिर उसको बाज़ मकामात पे उतार चढ़ाव उसकी उस अंदाज में हो सकता है। दूसरा जो जमात की तालीम है, खालिसतन सब भाइयों को मुझसे ज़्यादा पता है, बेहतर अहले इल्म जानते हैं। मैं एक छोटा सा वाक़या बयान कर देता हूँ। हज़रत खलीफतुल मसीह सालिस ऐन अपनी जवानी में, आपको पता है नहायत खूबसूरत दुनियावी लिहाज से भी, गोरे चिट्टे कड़ियल जवान, और पहले हज़रत खलीफतुल मसीह सानी की वो ख़ानदान में पहले बेटे थे, और लंबा ऊंचा कद, कड़ियल जवान, खूबसूरत चेहरा और इंग्लिश के माहिर। तो मौलाना थे, मुझे अब मेरे भाई मेरी कोई तस्दीक कर देंगे, शायद मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की बात है कि उनसे उनका मुकालमा हुआ किसी जगह पे खलीफा मसीह सालिस का, खलीफा मसीह सानी की ज़िंदगी में, और आप से थोड़ा सा लहजे में आपके तुर्शी आई, कोई लफ्ज़ गलत नहीं निकला ज़ुबान से, कोई ऐसी कोई बेअदबी नहीं की, लेकिन तुर्शी लहजे में थोड़ी आई। उनसे बात करते हुए किसी बात पे तुर्श कलाम हुए थोड़े से। ये मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब जो बाद में जमात के तीसरे खलीफा बने, उनके पास गए हैं, उनके शहर, उनसे माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हुई, मैंने भी कुछ ऐसी बात की थी, कुछ मुझसे भी ऐसी बात हुई, कुछ आपके लहजे में थोड़ी सी तुर्शी आ गई, लेकिन कोई ऐसी बेअदबी वाली बात नहीं इसमें। बड़ा उनका जी अब्बा जान ने भेजा माफ़ी मांगने के लिए। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें माफ़ किया, अगर ये बात है तो उनको बताओ जाके मियाँ साहब को मैंने माफ़ किया। वापस आके बताते हैं अब्बा जान माफ़ी। उन्होंने कहा कि नहीं, ये कौन सी माफ़ी मियाँ, वापस जाओ
ان سے لکھوا کے لے کے آؤ معافی، کہ وہ لکھ کے دیں کہ انہوں نے تمہیں معاف کر دیا۔ دوبارہ گئے ہیں مولانا صاحب کے پاس اور ان سے کہا کہ ابا جان کہتے ہیں کہ لکھ کے معافی دیں۔ انہوں نے پھر کہا کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، کچھ ایسا ہوا نہیں، کچھ میری طرف سے بھی ہوئی، کچھ آپ کا لہجہ بھی تھوڑا ہوا کرخت، چلو اگر میاں صاحب کہتے ہیں میں تمہیں لکھ دیتا ہوں۔ تو لکھوا کے لے کے آئے، تو حضور کو پیش کی معافی، تو حضور نے تب مانی۔ یہ ہے جماعت کا معیار، کوئی کر کے دکھائے پھر مانے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، وہ حدیث کا ریفرنس مانگ رہے تھے ہمارے یہ شامی بھائی، وہ میں دے دیتا ہوں، میرے پاس ابھی کھڑا ہو گیا، بچ گیا، کل کا انتظار نہیں کرتے۔ تو یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً عیسیٰ ابن مریم 120 سال تک زندہ رہا تھا اور میں غالباً 60 سال کی عمر کے سر پر خروج کروں گا۔ یہ حدیث ہے کنز الاعمال، نیا ایڈیشن، جلد 11 اور صفحہ ہے 479۔ اور وہ دوسری حدیث مجھے نہیں مل سکی، وہ جو نصف عمر والی، لیکن یہ حدیث بار ہے۔ جی میں نے لکھ لیا ہے کنزم اعمال نیو ایڈیشن جلد 11 صفحہ 479۔ اور پرانے ایڈیشن میں ہے جلد 6 صفحہ 160۔ جلد، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ چلے میں چلتا ہوں اب، سارے بھائی خیال رکھیں اپنا۔ ٹھیک ہے شامی بھائی، جزاک اللہ تک آپ آیا کریں، کوئی بھی ایسا ہو بات تو۔ ہاں جی میں آتا ہوں آپ کے لائیو پہ، میں نیچے بیٹھ کے سنتا رہتا ہوں، ماشاءاللہ بڑے مزے کی آپ ڈسکشن کرتے ہیں۔ اس میں میں تھوڑی سی میں اس میں کر دوں کہ یہ جو حدیث بیان کی ہے نا بھائی نے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بعد میں آنے والے نبی کی عمر کم از کم آدھی ضرور ہوتی ہے ان سے پہلے جو نبی گزرا ہوتا ہے۔ کم از کم یہ نہیں کہ آدھی پہ وہ فوت ہو جائیں گے، اللہ اس طرح نہیں ہے، وہ یہ کہ کم از کم آدھی ضرور ہوگی، اگر اس سے زیادہ جاتی ہے تو جا سکتی ہے، لیکن آدھی عمر وہ ضرور پائے گا اپنے سے پہلے گزرنے والے نبی کی، جو اس سے ہم پھر استنباط کرتے ہیں حضور کی جو عمر ہوئی ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے پھر ہم حضرت عیسیٰ کی عمر نکالتے ہیں کہ ان کی عمر کم و بیش 120 سال ہوئی ہے، کیونکہ اگر حضور کی عمر ہم نکالتے ہیں 62.5 سال یا 63 سال، اور اگر قمری مہینوں سے نکالی جائے تو پھر بھی 60 سال بنتی ہے اس سے اوپر، تو اس سے پھر استنباط کیا جاتا ہے کہ آپ سے پہلے چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، تو پھر اس لحاظ سے ان کی عمر 120 سال ضرور ہوئی ہے۔ جی جزاک اللہ۔ لیکن یہ حدیث الگ ہے، یہ جو میں نے پیش کی ہے اس میں تو حضور سے فرمایا، باقاعدہ اپنی عمر کے بارے میں فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر کا بھی ذکر کیا، یہ دوسری الگ حدیث ہے۔ ہاں نہیں، وہ تو بالکل ٹھیک ہے، آپ نے جو بات کی وہ بالکل، ویسے میں بتا رہا ہوں کہ معیار نہیں ہے کہ صرف آدھی ہوگی، اس طرح تو دیکھیں نا، اگر اس طرح کسی نبی کی عمر فرض کریں 60 سال ہوئی ہے، تو پھر ضروری اگر ہو جائے تو وہ پھر 30 سال ہوگی پیچھے آنے والے کی، تو وہ ہے کہ کم از کم اتنی ہوگی۔ یہ بات واضح ہو چکی ہے کیونکہ وہ تو ذکر کر دیا تھا پہلے بھی کہ کم از کم آدھی ضرور ہونی چاہیے، ورنہ یہ تو لاجیکل بات بن جاتی سر۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ، شکریہ جی، جزاک اللہ، سب خیال رکھیں اپنا، انشاءاللہ میں کل آؤں گا ایک اور سوال کے ساتھ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، بہت خیال رکھیں اپنا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ میاں صاحب۔ جزاک اللہ میاں صاحب ਤੁਹਾਡਾ اللہ تعالیٰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ عطا فرمائے، ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ تعلیم و تربیت واسطے ارینج کر دو، اللہ تعالیٰ خوش ہوئے ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ، اللہ پاک اپنے سماج سے بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر بھی چلیں انشاءاللہ ہم بھی کبھی جرمنی آئیں گے اور آپ کے ساتھ سیلفی بنائیں گے انشاءاللہ موسٹ ویلکم۔ میرے دعا کریں میاں صاحب، میں آج آپ کی براڈ سے گر گیا تھا، میری ٹانگ میں چوٹ لگی ہوئی تھی۔ او ہو، تو مجھے بتاتے میں ڈاکٹر بھیجتا کو پلسٹر کر دیتا۔ بس دعا یاد رکھے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ ٹھیک ہے منصور بھائی، اللہ حافظ، شریف بھائی اللہ حافظ، ایاز بھائی اور احمدی صاحب اللہ حافظ، اور جتنے ہمیں سننے والے تھے اللہ تعالیٰ جو ہمیں سن رہے تھے اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے۔